Hey everyone, how are you all? Hope you all are fine and safe. Today we are going to start our next chapter, Vital Villages and Thriving Towns. In this chapter, we are going to read about the developments and use of iron and steels. Iron tools and agriculture. We often take the use of iron for granted today. Things made of iron and steel are a part of our daily lives. The use of iron began in the subcontinent around 3000 years ago. Some of the largest collection of iron tools and weapons were found in the megalithic burials. Around 2500 years ago, there is evidence for the growing use of iron tools. These included axes for clearing forest and iron plugshare. The plugshare was useful in increasing agriculture production. हमारी डेली लाइफ में आयरन एंड स्टील के बहुत सारे यूज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आयरन एंड स्टील की बनी हुई है, बट हम लोगों ने आज उसको फॉर ग्रांटेड ले लिया है. इसका यूज़ 3000 ईयर्स अगो से पहले या फिर 3000 ईयर्स अगो के अप्रॉक्स हो चुका था, बिकॉज बहुत सारे टूल्स जो कि आयरन के बने हुए वेपन्स मेगालिथिक बुरियल्स जो थे उनके आसपास अराउंड 2500 ईयर्स अगो बहुत सारे टूल्स जो कि बहुत यूज़फुल थे लाइक एक्सेस एंड प्लग शेयर्स, ये सारी चीज़ें मिली जिनकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बहुत बढ़ा. अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन. Irrigation. The kings and kingdoms you have been reading about could not have existed without the support of flourishing villages, while new tools and the system of transplantation increased production. Irrigation was also used. Irrigation work that were built during this time included canals, wells, tanks and artificial lakes. प्रोडक्शन में जो भी इंक्रीजमेंट हुई थी, इम्प्रूवमेंट हुई थी, ये विलेजर्स के सपोर्ट के बिना नहीं हो सकती थी, बिकॉज उन लोगों ने ही न्यू टूल्स का डेवलपमेंट किया, ट्रांसप्लांटेशन किया, लेक्स, कनाल्स, टैंक्स, आर्टिफिशियल लेक्स, सारी चीज़ें, इरिगेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन, सारी चीज़ें उनकी वजह से ही आगे बढ़ी एंड दे हैव इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑल्सो एंड बिकॉज ऑफ देम दे डेवलप्ड. Now the topic comes who lived in the villages. There were at least three different kinds of people living in most villages in the southern and the northern part of the subcontinent. In the Tamil region, large landowners were known as villalar, ordinary plugmen were known as ujjavar, and the landless laborers included slaves were known as kadaisiar and adimai. एटलीस्ट तीन तरह के लोग विलेजेस में होते थे. सदर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट जो सब कॉन्टिनेंट का था, तमिलनाडु रीजन में जो कि लार्ज लैंडलॉर्ड्स थे उनको हम लोग विल्लार के नाम से जानते थे. ऑर्डिनरी प्लगमैन को उज्जावर एंड लैंडलेस जो भी थे उनको कदाईसियार एंड आदिमाई के नाम से जाना जाता था. Now the important things come. The headman of the village was known as Grama Bhojka, and usually men from the same family held the position for generation. In other words, the post was hereditary. The Grama Bhojka was often largest landowner. Generally, he had slaves and hired workers to cultivate the land. Besides, as he was powerful, the king often used him to collect the tax. Sometimes he also functioned as judge and sometimes as a policeman. Apart from the Garma Bhojika, there were other independent farmers known as Grihapatis, most of whom were smaller landowners, and there were men and women such as Dasa and Karmakara who did not own land and had to earn a living working on field owned by others. कंट्री के नदर्न पार्ट में विलेज के जो सबसे अमीर लोग, लैंड ओनर जो होते थे, बहुत बड़े लार्जेस्ट लैंड्स के, उनको हेडमैन माना जाता था और उनको गर्मा भोजका के नाम से जाना जाता था. गर्मा भोजका के पास बहुत बड़ी बड़ी लैंड्स होती थी. वो स्लेव्स को एंड वर्कर्स को हायर करते थे ताकि उनके लैंड पे वो वर्क कर सके. वो यूजुअली बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होते थे. किंग्स इसीलिए उनको विलेजेस से टैक्स कलेक्ट करने के लिए अपॉइंट करते थे. फ्रॉम डैट कुछ ऐसे भी लैंड ओनर्स थे जिनके पास बहुत कम लैंड्स थी, उनको गृहपतिस के नाम से जाना जाता था. जिन लोगों के पास भी अपनी लैंड नहीं होती थी वो दूसरों की फील्ड्स में काम करते थे एज अ दासा एंड कर्मकरा. विलेजेस में मोस्टली जो ब्लैक स्मिथ, पॉटर, कारपेंटर, ये सारे पर्सन्स रहते थे. Now here the highlights come. The earliest Tamil composition. Some of the earliest work in Tamil known as Sangam literature were composed around 2300 years ago. These texts were called Sangam because they were supposed to have been composed and compiled in assembly known as Sangam. Now finding out about cities, stories, travelers, sculpture and archaeology. You may have heard of the Jhatkas. These were stories that were probably composed by ordinary people and then written down and preserved by Buddhist monks. Here is a part of Jhatka's story which tells us how a poor man gradually became rich.
एक बार की बात है, एक क्लेवर पुअर यंग मैन शहर में रहते थे। उनका रिसोर्स सिर्फ डेड रैट होता था। वो जा कर के होटल्स में उसको सेल करते थे कि ताकि उनकी बिल्लियों के लिए। एक बार की बात है, एक बार स्टॉर्म आ गया और किंग का जो पूरा गार्डन था वो बिखर गया ब्रांचेस लीव्स से। तो गार्डनर को अब समझ नहीं आ रहा था कि इस चीज़ को कैसे क्लियर करे, तो उसने यंग मैन को ऑफ़र किया। देन यंग मैन ने उस ऑफ़र से अग्री कर लिया। यंग मैन इधर उधर देखा उन्होंने, और वहाँ पे जो भी बच्चे खेल रहे थे उन लोगों को एक स्वीट मीन्स पर ब्रांच पर लीव उन्होंने स्वीट ऑफ़र की कि आप लोग स्टिक को उठाओगे तो उसके बदले आप लोगों को स्वीट मिलेगा, मीन्स मिठाई मिलेगी। कुछ ही टाइम में सारा गार्डन पूरा अच्छे से साफ़ हो गया। उसी के बाद वो सारे जो पाइल अप हुए थे जितने सारे लीफ एंड ब्रांचेस थे, तो किंग का जो पॉटर था उसको भी अपने बेक करने के लिए उस चीज़ की ज़रूरत थी। देन उस यंग मैन ने उसको पूरा दे दिया और उसके बदले उसने उसको पॉटर ने उसको पे कर दिया, मीन्स पैसे दिए। यंग मैन के पास दूसरा प्लान आया। उसने फुल जार में ना वाटर कैरी करके सारे सिटी गेट पे जाके हर एक ग्रास कटर को ऑफ़र किया। टोटली 500 ग्रास कटर को उसने ये सारी चीज़ें ऑफ़र किए। देन ग्रास कटर ने वो कहा कि तुम हमारे साथ बहुत अच्छा कर रहे हो, इसके बदले हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। तो फिर उस क्लेवर पुअर यंग मैन ने रिप्लाई किया कि मैं आपको बाद में बताऊंगा जब भी मुझे आपके मदद की ज़रूरत पड़ेगी। देन उस यंग मैन ने ट्रेडर को अपना फ्रेंड बनाया। देन ट्रेडर ने कुछ दिनों के बाद ये बताया कि कल ना हॉर्स डीलर आ रहे हैं अपने 500 हॉर्सेस के साथ। ये बात सुनते ही वो ग्रास कटर के पास वापस गया और उन्हें प्लीज़ किया उसने कि मुझे बंडल्स ऑफ ग्रास दे दीजिए, और जब तक मेरे ग्रास नहीं बिके तब तक आप लोग अपने नहीं बेचिएगा। देन हॉर्स डीलर को कहीं और से ग्रास नहीं मिल सका। देन उसने वो जो यंग मैन था उसी से वो ग्रास खरीदे, वो भी 1000 कॉइन्स में। दिस वॉज द स्टोरी ऑफ क्लेवर पुअर यंग मैन एंड हाउ ही बिकम रिच। Now we move on to the next page. We had seen that कि cities बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कर गई थी। जो महाजनपद के कैपिटल्स थे उस टाइम में, उनके चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी मैसिव वॉल्स हुआ करती थी ताकि वो लोग खुद को प्रोटेक्ट कर सके। बहुत सारी सिटीज़ में आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड और सिरामिक रिंग्स. They were arranged as ring wells. These seams has been used as toilets and in some cases as drain and garbage dumps. These ring wells are usually found in individual houses. जो भी चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर की लाइक होम्स एंड मार्केट्स एंड जो भी चीज़ें, वो सारी चीज़ें मोस्टली वुड, मड्स, ब्रिक्स वगैरह की बनी होती थी ताकि वो लोग सरवाइव कर सके। एंड दूसरा तरीका जिससे हम लोग अर्लीस्ट सिटीज़ के बारे में जान सकते हैं, जो कि सेलर एंड ट्रैवलर्स थे जो कि वहाँ गए थे, जिन्होंने वहाँ विज़िट किया, उन्होंने डिटेल्ड अकाउंट में ये सारी चीज़ें बताई। जो कि अननोन एक ग्रीक के सेलर थे, उन्होंने सारे पोर्ट्स के बारे में जहाँ जहाँ वो गए उन सब चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया एंड बताया, डिस्क्राइब किया उन सारी चीज़ों को। नाउ द स्टोरी ऑफ बारी गाज़ा, इट इज़ ऑल्सो नोन एज भारुच। मीन्स बारू गाज़ा की स्टोरी जानेंगे जिसको हम लोग भारुच के नाम से भी जानते हैं। गल्फ इज़ वेरी नैरो एट बारी गाज़ा, और यहाँ से कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था, बहुत हार्ड होता था। इसलिए इसके लिए स्किलफुल फिशरमैन की ज़रूरत होती थी जो कि किंग की तरफ से ही एम्प्लॉय किया जाता था। यहाँ से वाइन, कॉपर, टिन, लीड, कोरल, टोपाज, क्लॉथ, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन एक्सपोर्ट किए जाते थे। फिर प्लांट्स जो भी हिमालय में पाए जाते थे, आइवोरी, अगेट, सर्नेलियन, कॉटन, सिल्क एंड परफ्यूम, ये। और इनमें से स्पेशल कुछ कुछ जो चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी होती थी और स्पेशल होती थी, वो मर्चेंट्स किंग को एज गिफ्ट ऑफर करते थे। इसमें बहुत सारे वेसल्स हो, सिल्वर के, बॉयज़ फॉर सिंगिंग एंड ब्यूटीफुल वुमेन, और वाइन्स एंड जितने अच्छे क्लॉथ्स होते थे, ये सारी चीज़ें एज अ ऑफर, एज अ गिफ्ट मर्चेंट्स किंग को दिया करते थे। कॉइन्स, दैट वाज आल्सो द पार्ट ऑफ देयर लाइफ। एंड कोई भी चीज़ जो हेल्थ हो उसके लिए कॉइन का यूज़ किया जाता था। कॉइन 2 टाइप्स के होते थे, पंच मार्क कॉइन्स एंड द प्लेन कॉइन्स। पंच मार्क कॉइन्स यूजुअली उस पर डाई किया जाता था या फिर स्टैम्प से पंच किया जाता था। कॉइन्स सब कॉन्टिनेंट के मोस्ट ऑफ द पार्ट में पाए जाते थे। Now, cities with many function, we often a single town was important for variety of reason. Let us look at the example of Mathura. Mathura has been an important settlement for more than 2500 years ago. It was an important because it was located at the crossroad of the two major routes of travel and trade.
from the northwest to the east and the north to south. There were fortifications around the city and the several shrines. Farmers and herders from the adjoining area provide food for the people in the city. Mathura was also center where some extremely fine sculpture was produced. मथुरा was important at that time because वो दो major route के पास locate करता था, north west to east and from north to south. वहाँ पे farmers, herders, बहुत सारे लोग develop करना start कर गए थे. वहाँ पे center जो extreme था वहाँ पे finest sculpture भी मिलता था. Around 200 years ago, Mathura became the capital of Kushna. मथुरा वॉज ऑल्सो रिलीजियस सेंटर. यहाँ पे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, जैन, ये सारे लोग रहते थे एंड यहाँ ये इम्पोर्टेंट सेंटर था फॉर वर्शिप ऑफ कृष्णा. कुछ इंस्क्रिप्शन जो कि सरफेस पे, कभी स्टोन पे, स्टैचू पे, ये सारी चीज़ें लिखी होती थी जो कि मथुरा में पाई जाती थी. ये सारी चीज़ें यूजुअली मेन बनाते थे एंड समटाइम्स वुमेन ऑल्सो. नाउ अबाउट द क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन. आर्कियोलॉजिस्ट ने क्राफ्ट के भी एविडेंस पाए. एक्सट्रीमली फाइन पॉटरी जो कि नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर NBPW के नाम से जानी जाती थी और इसका नेम इसलिए ये पड़ा बिकॉज वो नॉर्थ सब कॉन्टिनेंट के पार्ट में ही पाई जाती थी. मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एट दैट टाइम. वाराणसी और मदुरई, यहाँ मेन एंड वुमेन दोनों काम करते थे एट क्लॉथ सेंटर. मेनी क्राफ्ट पर्सन एंड मर्चेंट्स नाउ फॉर्म्ड एसोसिएशन नोन एज श्रेणीज. श्रेणीज सबको रॉ मटेरियल मीन्स कच्चा सामान प्रोवाइड करते थे, हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करते थे. एंड श्रेणीज वर्क एज अ बैंकर ऑल्सो. वहाँ पे रिच वुमेन एंड मेन सब अपने मनी को डिपॉजिट करते हैं. दे ऑल्सो सपोर्ट द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन. नाउ अ क्लोजर लुक टू अरिकामेदु. इट इज लोकेटेड इन पौंडीचेरी. बिटवीन 22 एंड 19 ईयर्स अगो अरिकामेदु कोस्टल सेटलमेंट था जहाँ पे शिप्स आती सारे गुड्स वहीं लोड किए जाते. आसपास वेयर हाउस भी पाए गए थे जो कि ब्रिक से उनका स्ट्रक्चर बना हुआ था. मेडिटेरियन रीजन था, वहाँ पे पॉटरी भी पाई गई. डबल हैंडेड जार्स में भी उसमें लिक्विड या फिर वाइन या ऑयल कंटेन किया जाता था. रेड ग्लेज्ड पॉटरी पाई गई जो कि अरिटाइन के नाम से जानी जाती थी. फिर दूसरे काइंड की भी पॉटरी पाई गई दैट वाज मेड बाय लोकली. सो रोमन डिजाइन वेयर यूज्ड. रोमन लैम्प्स, ग्लासवेयर, जेम एंड हैव बीन फाउंड एट द साइट. स्मॉल टैंक्स मिले जो कि शायद डाई करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे. जेम्स के बीड्स भी मिले. दिस वाज हाउ ऑल द विलेजेस डेवलप. It was the oldest city of Europe and it is developed at the same time जब गंगा वैली डेवलप की. The capital and one of the largest empire, one that is spread across Europe, North Africa and West Asia. Augustus, one of the most important emperor who ruled about 2000 years ago, set the found of Rome, a city of brick and made into a city marble. He and later ruler built temple and places. They also built huge amphitheater, open arenas surrounded by tires and seat, where citizens could watch all kind of show and public bath with separate timing for men and women, where people met and relaxed. Huge aqueducts, channel to supply water, were built to bring where the cities for baths, fountain and toilets. Rome was very developed city. Now the chapter ends, the vital village and thriving towns. Hope you find this video useful. Do like, share and subscribe to my channel.